Hello everybody. Today we are going to discuss the next kingdom. As you know that we have already done with the kingdom Monera, kingdom Protista and Fungus in detail. Today we are going to discuss the basic characteristics of kingdom Plantae, Animalia and certain viruses and viroids including all the prions and lichens. So let's start the kingdom Plantae, but there is a separate chapter in +1 biology about this kingdom plants and animalia. So remember that we are going to discuss only the basic features of kingdom Plantae, by which you are able to differentiate between the kingdom Plantae and animalia. So let's start this topic, that is kingdom Plantae. As you know that already you have studied the plant cell and the animal cell. Going into the basic features of this kingdom Plantae is also eukaryotic. मैंने आपको पहले ही बताया था that only the kingdom Monera, which includes the bacteria, they all are prokaryotic, and prokaryotic means they are not having definite cell wall, definite nucleus or nuclear membrane. So here kingdom Plantae includes all the eukaryotic chlorophyll containing organisms, and chlorophyll is a pigment. You know that it is a specific pigment which is responsible for the green color of the leaves, and it is present in a cell which is called as plastid. So plants की एक characteristic है जो animals में नहीं होती, that is they contain plastids, और वो plastids अलग अलग तरह के हो सकते हैं, and depending on that they contain certain chlorophyll pigment which helps in the autotrophic nutrition also, that is the process of photosynthesis. So here we are going to discuss certain more specific features of these plants also. We have already read that plants are only autotrophic in nature, but certain plants, there are certain exceptions in the kingdom Plantae also that are heterotrophic. तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए नेम सब insectivorous plants or parasites, that means कि those plants that depend upon the insects, यानी that feed on insects, it means they are not having autotrophic mode of nutrition. That defines कि plants में भी कुछ एक exceptions हैं that goes for heterotrophic mode of nutrition. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास दिया हुआ है ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे जूम करती हूँ. दैट इज ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. आई होप यू आर एबल टू सी दिस प्रॉपरली. सो ब्लैडरवॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, और कस्क्यूटा इसमें एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है. एंड पैरासाइट भी मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आपको मेरी वो वीडियोस देखनी है तो यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन लिंक बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट दिस इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, एंड उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है. आपको मैंने ये किंगडम फंगस में भी बताया था कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में इनको क्लासीफाई किया था तो किंगडम फंगस को दे हैव पुट इट इनटू द किंगडम प्लांटे, बट लेटर ऑन दे डिस्कवर्ड दैट किंगडम फंगाई हैव द सेल वॉल with the formation of chitin, but the basic component which is used in the cell wall of the plants is cellulose. That is why they have been separated in the different kingdoms. So इनकी cell wall cellulose से बनी होती है. and plants के अंदर जो सबसे important आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो आप एक चार्ट की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं, इज़ दैट कि किंगडम प्लांटे एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 9th कि इसकी एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में डिवीजन होती है. और एंजियोस्पर्म्स में भी फर्दर डिवीजन होती है जो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स. सो यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है जो आप 9th में नहीं पढ़ के आए हैं, दैट इज़ कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं. अब आपने इतना तो पढ़ा ही है कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं और डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड दैट टू कंटेन द प्लॉइडी. इट मीन्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंटेंट. इट मीन्स दैट n number of chromosomes and 2n number of chromosomes. Just like human beings has 46 number of chromosomes. अब आप इन number of chromosomes को कह सकते हैं 23 pair of chromosomes, out of which 122 pairs are autosomes and 1 pair is allosome, that is responsible for the gender of the person, that is the sex of the person. So here यहाँ पर diploid sporophytic means whatever the number of chromosomes are present in any plant. क्योंकि अभी हर एक प्लांट का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर नहीं बताएंगे, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में और अलग अलग एनिमल्स में देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हुए आपको ये बताया है दैट 2n number of chromosomes are present in each organism and n means the half content.
तो 2n नंबर को हम हमेशा डिप्लॉयड कहेंगे और n नंबर को हम हमेशा गेमिटोफाइट कहेंगे या हैप्लॉयड कंटेंट कहेंगे। इसीलिए इन्होंने डिप्लॉयड को हमेशा स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड को हमेशा गेमिटोफाइट लिखा है। तो किसी भी प्लांट्स के लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गेमिटोफिटिक आपस में ऑल्टरनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्लॉयड मेल गैमेट और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट डिफ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को यहाँ बेबी या जाइगोट मान सकते हैं। इनकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है अलग अलग प्लांट्स में। कई बार ये फ्री लिविंग होती है और कई बार ये एक दूसरे पर डिपेंड भी करती है, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट होती है। सो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गेमिटोफाइट का एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करना इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दिस इज हाउ द बेसिक प्लान ऑफ किंगडम प्लांटे वर्क्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज थी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकती है। देन इज़ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने बताया है दैट दे आर करेक्टराइज्ड, यानी देयर करेक्टरिस्टिक फीचर इज हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मोड, यानी ये यूकैरियोटिक हैं और हेट्रोट्रॉफिक हैं। दे ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स एंड दे हैव नो मैकेनिज्म येट डिस्कवर्ड कि ये अपना खाना खुद बना सके। मोर ओवर दे आर मल्टी सेलुलर, इट मीन्स देर इज़ अ डिविजन ऑफ लेबर। जितने भी सेल्स बॉडी में होते हैं वो टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, सबका काम अलग अलग है। सिंगल सेल डज नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मोर ओवर दे लैक सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन दी plants. So they directly or indirectly depend on plants for their food, and they digest the food in an internal cavity and stores the food reserves as glycogen or fat. हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज एक्सेस में डिपॉजिट हो जाता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। रिमेंबर, इट कैन बी आस्क्ड इन योर 1 मार्क्स क्वेश्चन दैट व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो यू हैव टू आंसर दैट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट जिसमें हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी द swallowing ऑफ फूड बाय themselves, ingestion of food, अपने फूड को अंदर ले जाने का तरीका दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी एनिमल्स हैं दे टेक देयर फूड बाय themselves इनसाइड देयर बॉडी। दे फॉलोड अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। और जितनी भी हायर फॉर्म्स होती हैं उनमें इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, यानी दे हैव सेंस ऑर्गन्स एंड दे हैव नर्वस सिस्टम, देयर मोटर मैकेनिज्म, जिससे कि वो आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। ज़्यादातर दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लेटर ऑन इन द हायर स्टडीज यू विल बी एबल टू हैव अ डिफरेंट चैप्टर अबाउट द मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, बट लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग ऑफ दिस लोकोमोशन मूवमेंट। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट में हम क्या करते हैं, हम बैठे बैठे भी मूवमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, मूवमेंट ऑफ योर आईलिड्स। बट लोकोमोशन मीन्स अ स्पेसिफिक मूवमेंट जिसमें कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है, यानी लोकोमोशन मीन्स कि चेंज इन द प्लेस वाइल मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड किंगडम एनिमेलिया का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि हम मूव कर सकते हैं, वेयर एज किंगडम प्लांटे मूव नहीं कर सकती। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ फेवर्ड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिस्पेक्टिवली। बट यहाँ पर मैं आपको बेसिक प्लान बता दूँ। अब किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज किंगडम प्लांटे में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमेलिया में नहीं होते। किंगडम प्लांटे में सेल वॉल होती है, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती। किंगडम प्लांटे का मोस्टली ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, बहुत कम हेट्रोट्रॉफिक होता है। बट किंगडम एनिमेलिया इज़ नेवर ऑटोट्रॉफिक, इट इज़ ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट इज उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ नॉट होलोजोइक, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक। और हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोरोवर वो एक सर्टेन टाइम तक ग्रो करते हैं इन साइज़ एंड शेप, बट हम भी एक डेफिनेट शेप और साइज़ के अंदर एडल्ट्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। उनका जो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, और हमारा सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म डिफरेंट है, जिसका बेसिक यूनिट न्यूरॉन या नर्व सेल है। लिटरली सेइंग दैट प्लांट्स डू नॉट अंडरगो लोकोमोशन, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, दे डू ओनली मूवमेंट्स। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स हैं दे ऑलवेज डू द लोकोमोशन, विच मीन्स द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो अकर्स इन प्लांट बट इट डज नॉट अकर इन एनिमेलिया। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया, एंड यू हैव टू लर्न द डिफरेंस ऑफ एवरी किंगडम. You can be asked in the examination that give the difference between kingdom Monera and Protista. What you will say? You will
separate out all the basic characteristics, and you can also mention certain organisms with their scientific names. Next is जो आपके सिलेबस में न्यू है और आपने नहीं पढ़ा अब तक, that is new in the +1, दैट इज़ वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकन्स. ये क्या होते हैं, बारी बारी ने डिस्कवर करते हैं. 5 फंडिंग क्लासिफिकेशन में जो RH विटिकर ने दी थी उसमें लाइकन्स का या वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स का कोई मेंशन नहीं है, इसलिए इन्हें अलग से रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको पता है दिस इज़ अ पीरियड ऑफ कोरोना वायरस, तो यू मस्ट नो कि वायरस क्या है. ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, आपको पता है जो कॉमन कोल्ड होती है वो एक वायरस से होती है जिसे रहीनो वायरस कहते हैं, एंड इसी कॉमन कोल्ड को हम फ्लू भी कहते हैं. Viruses didn't find a place in classification since they are not considered truly living. RH विटिकर ने उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन में रखा जो लिविंग हैं. RH विटिकर के अकॉर्डिंग वायरसेस लिविंग नहीं थे, इसीलिए उन्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिली और उन्हें सेपरेटली रखा गया. इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, दैट आर करेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. यानी अगर इनको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती तो लिविंग बॉडी के बाहर ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टलाइन होते हैं. मोर ओवर अगर इन्हें एक बॉडी मिल जाती है, once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. यानी जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर किए, ये उसकी पूरी की पूरी मशीनरी को यूज़ करते हैं. तो यहाँ से समझते हैं कि कोरोना वायरस ऐसा हमारे अंदर क्या करता है. आपको नॉर्मली दीज डेज यू आर बीइंग आस्क्ड दैट कि आप बाहर ना जाइए. बाहर ना जाने का मोटिव ये है कि जैसे ही आप बाहर जाएंगे, कोरोना वायरस जो कि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, जब वो किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, जैसे ही आप बाहर जाएंगे उसको कोई होस्ट मिल जाएगा और वो आपके अंदर आ जाएगी. जैसे ही वो आपके अंदर आएगी इट विल बिकम लिविंग और वो अपने आप को नंबर में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी, विच मीन्स रेप्लिकेट करना शुरू कर देगी और आपकी न्यूक्लियस के अंदर जाके आपके DNA के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी कि इट विल बिकम सो वेनम एंड पॉइजनस फॉर यू. अब यहाँ पर आपको बहुत सारे साइंटिस्ट भी मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग टाइम पर डिस्कवरी की. द नेम वायरस जो है वो वेनम से आया है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड्स. और ये जो नेम वायरस था ये किसने दिया था, दमित्री इवानोवेस्काई ने. उन्होंने रिकोगनाइज़ किया कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं और वो टबैको में मोज़ेक डिजीज़ कर रहे हैं. सी दिस इज़ द टबैको मोज़ेक वायरस. दिस वायरस इज़ टबैको मोज़ेक वायरस. ये वायरस का एक RNA होता है और इसके अंदर ये कैप्सिड्स होते हैं. कैप्सिड्स में कैप्सोमेयर्स होते हैं और इन्हीं के अंदर वो पॉइजनस मटेरियल होता है. सो ये RNA, ये अगर टबैको मोज़ेक वायरस टबैको के अंदर आ जाएगी तो वो उसके अंदर एंटर करके उसी के जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगी और बैडली रेप्लिकेट करके उसको इन्फेक्ट करेगी. इसके बाद दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस मैंने आपको ऊपर दिखाई है ये बिल्कुल बैक्टीरिया से भी छोटी होती है, बिकॉज ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से भी पास कर गई, इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है. देन M.W. बेजरिंग आए जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इन्फेक्टेड प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्ट है टबैको प्लांट्स के वो इन्फेक्शन कर सकता है हेल्दी प्लांट्स में, एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड. जैसे कि आपको वो सब लोग कह रहे हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं कि कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है उसके कॉन्टैक्ट में जो भी दूसरा हेल्दी पर्सन आएगा उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. इन द सेम वे उन्होंने ये नोटिस किया था. फिर आए W.M. स्टैनले जिन्होंने ये शो किया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. उन्होंने कहा वायरसेस को हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उन क्रिस्टल्स में ज़्यादा अमाउंट किसका है, प्रोटीन्स का. और वो बाहर अगर होस्ट सेल के होते हैं तो दे आर इनर्ट, यानी कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं. ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी कंडीशन में पैरासाइट बनना, यानी अगर ये लिविंग बॉडी के बाहर हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर हैं तो ये पैरासाइट का काम करेंगे. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब किसी एक कंडीशन में पैरासाइट की तरह बिहेव करना. अब इन वायरसेस में इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है. बट किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा. अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन.
एक वायरस जो होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब एक उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, आरएनए या डीएनए, और प्रोटीन हो सकता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है इनका बहुत इन्फेक्शियस है। जनरली अगर हम बात करें तो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती हैं, लिसन केयरफुली, वो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखती हैं, और वो वायरसेस जो एनिमल्स को इफेक्ट करती हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखती हैं। इट मीन्स जो कोविड-19 है उसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होगा। तो मतलब कि कुछ भी हो सकती हैं, कोविड के अंदर कुछ भी हो सकता है, सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एनीथिंग। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है जिसका डायग्राम हमारे पास ये दिया हुआ है, दैट इज बैक्टीरियोफेज। दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। सी, बैक्टीरियोफेज में यहाँ पर एक हेड है, दिस इज द कॉलर, दिस इज द शीथ एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसी वायरसेस, यानी ये बैक्टीरियोफेज का मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक ऐसी वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करती है। तो बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन भी आप आ सकती है, और टीएमवी का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज, तो यू विल से दैट वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं दैट आर बैक्टीरियोफेज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होती हैं, और उनके प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर बहुत सारे कैप्सोमियर्स होते हैं जो कि उसके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये कैप्सोमियर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, हेलिकली अरेंज भी हो सकते हैं। कैप्सोमियर्स जो हैं वो हेलिकली अरेंज भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। और वायरसेस जो है वो ऐसे डिजीज़ करती हैं जो अभी तक नोटिस किए गए हैं, जैसे मम्प्स, एमएमआर का एक इंजेक्शन लगता है वैक्सीन का, उसमें मीज़ल्स, मम्प्स, रुबेला के लिए वो लगता है। तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता जिसे कहते हैं, हर्पस या इन्फ्लुएंजा, ये सारी वायरसेस हैं। एड्स इन ह्यूमंस, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी वायरस। प्लांट्स के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एनिमल से। एनिमल्स के अंदर तो सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, लाइक आपको फ्लू हो गया, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा वायरस के एंटर होने से तो आपको छोटे छोटे डिजीज़ बहुत जल्दी होंगे और बहुत सारे हो जाएंगे, इट विल बिकम अ सिंड्रोम। लेकिन प्लांट्स में द सिम्टम्स आर डिफरेंट। उनके अंदर लीफ रोलिंग हो जाएगी, लीफ कर्लिंग हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी, वेन क्लियर हो जाएगी, छोटे हो जाएंगे, ग्रोथ कम हो जाएगी, मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सब करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं प्लांट्स के। ये तो बात हुई वायरसेस की। नाउ व्हाट आर वायरॉइड्स? 1971 में टी.ओ. डायनियर ने बताया दैट एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरसेस से छोटा है, यानी है वायरसेस लेकिन वायरसेस से छोटी हैं। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किया उन्होंने, यानी कि पोटैटो के जो स्पिंडल्स थे उसके अंदर डिजीज़ किया। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। उन्होंने देखा कि वायरॉइड्स में फ्री आरएनए होता है और उनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, इसीलिए उनका नाम वायरिड है। और जो भी आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो इट मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स? वायरसेस मोर इन्फेक्शियस होती हैं, वायरॉइड्स लेस इन्फेक्शियस होती हैं। वायरसेस जो हैं टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ कर सकती हैं टोबैको प्लांट में। वायरॉइड्स जो हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करती हैं। वायरसेस लार्जर होती हैं, वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। वायरसेस में डीएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड और प्रोटीन कोट होता है, लेकिन वायरॉइड्स में देयर इज़ ओनली फ्री आरएनए एंड दे लैक द प्रोटीन कोट। और दैट टू आरएनए जो होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। देन देर आर प्रायॉन्स। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस फाउंड किए गए जो कि कुछ एजेंट से ट्रांसफ़र हो रहे थे, कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन जो है वो फोल्ड रहता है। ये एजेंट बिल्कुल सेम है साइज़ में एज द वायरसेस, और इन एजेंट्स को हम प्रायन्स कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो प्रायन्स ने किया था वो था बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle. Very important and it can be asked in the examination. What is mad cow disease? The mad cow disease, it is found in cattle
और ये डिज़ीज़ जो है वो एनालॉग वेरिएंट था सीआर जैकब डिजीज़ का, जो कि ह्यूमंस में भी फाइंड आउट किया गया। सो मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो प्रायंस करते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज मीन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है जिसकी वजह से मैडनेस जैसे फीचर्स आते हैं, इसलिए इसको मैड काउ डिजीज़ कहते हैं या जैकब डिजीज़ कहते हैं ह्यूमन बींग्स में। और ये कॉज होते हैं प्रायन से बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ कहते हैं। तो डिजीज़ का नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी एंड कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज़ या जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। देन लाइकेंस मैं अपने एक वीडियो में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल इट इज़ अ टॉपिक ऑफ दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई हैव टू डिस्कस इट। लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फर्स्टली आई विल टेल यू दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहकर एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल लाइकेंस ये फॉरेस्ट में ट्रीज़ के ऊपर या रॉक्स के ऊपर होते हैं, और जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इसके अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखने में ये वाइट एंड ग्रीन कलर की होती है, जिसमें ग्रीन पार्ट इज़ ऑफ एल्गा एंड वाइट पार्ट इज़ ऑफ फंगस। एल्गा एज इट इज़ autotrophic organism, it prepares the food in the presence of sunlight with the help of photosynthesis and gives the nutrition to the fungus, whereas fungus आप already पढ़ चुके हैं, it contains long hyphae जिसकी हेल्प से ये वाटर और मिनरल्स को डिराइव करती है और ये वाटर एंड मिनरल्स को एल्गा को देती है। सो दे बोथ म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड फूड फॉर ईच अदर। तो ऐसी क्लोज एसोसिएशन जो है वो नेचर में हमें देखने को मिलती है, बट हम देखकर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये दो ऑर्गेनिजम्स इसमें हैं। मोरोवर एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं, क्योंकि फाइको मीन्स प्लांट्स एंड माइको मीन्स माइसीलियम, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं फंगस में। सो दिस इज़ हाउ एन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इन दी लाइकेंस, एंड दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरियाज में कभी भी ग्रो नहीं करते। तो इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाई लाइकेंस आर good pollution indicators, then you have to discuss the full note of this lichens. So this was all about your biological classification, friends. I hope you like this video, and if you like this video, please do comment in my video section so that I get more inspiration to make new videos, and please subscribe to my channel if you are a new viewer. Thank you. Have a nice day.